Yeah, start. Thank you. Good afternoon, everyone. Myself Mandira Paul, and my roll number is 2119. And today my topic is trade and traders in Mughal period. So first things first, sources. Jahangiri, that was by Jahangir. Fukazawa H. The Medieval Deccan. Mosby Shen, The Economy of the Mughal Empire. Then Topon Rai Chaudhuri, Irfan Habib, and one more book that I have found is Malikanda Thil, Maritime India, Trade, Religion and Polity in Indian Ocean. Now coming to the objectives. So here we can see that there are different type of trade during the Mughal period and some group of people who are like वो trade को चला रहे थे were basically known as merchant or the traders. So हम उसके बारे में देखेंगे. नाउ सबसे पहले कि ट्रेड और ट्रेडर्स क्या है और कौन है. तो ट्रेड इज बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज with compensation paid by a buyer to a seller or the exchange of good or service between parties. Now, a trader, it's an individual who engage in the buying and selling of financial assets in any financial market, either for themselves or in the behalf of another person or institution. नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रेड इन मुगल पीरियड तो उन्होंने इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर रखा है जैसे इनलैंड ट्रेड इंटर रीजनल ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स देयर आर सम फॉरेन ट्रेड्स एंड ओशियनिक ट्रेड्स एज वेल सो और एक्सपोर्ट्स में कुछ चीजें जो एक्सपोर्ट होती है वो भी हम फर्दर इसके आगे पढ़ेंगे. Now, inland trade. So, what is inland trades? Inland trade refers to concerning or located in the interior of the country or region away from a sea or border, which basically a local trade, local जो मतलब होता markets and everything उसमें होता है जिसको हम domestic trade भी कह सकते हैं. इसका एक important aspect है कि ये इकोनॉमी को बढ़ाने में काफी अच्छा हेल्प करता है. नाउ इन दिस यहाँ पे सबसे ज्यादा लोकल मार्केट्स होते हैं तो लोकल यहाँ पे जो ट्रेड में जो चीजें जो हमें दिखने को मिलती है वो है फूड ग्रेन्स सॉल्ट सिंपल टूल्स एंड इक्विपमेंट ऑफ वुड एंड आयरन फॉर एग्रीकल्चर. यहाँ पे डोमेस्टिक नीड्स के सारे सप्लाईज मिलते हैं एंड कॉटन टेक्सटाइल्स वेर ऑल्सो अवेलेबल. ट्रेवेनियर जो है एक फ्रेंच ट्रैवलर हैं जो इंडिया में आए थे सेकेंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी. वो कहते हैं कि एवरी विलेज could be bought rice, flour, butter, milk, vegetable, sugar and other things. In some villages कहीं पे तो even animals भी देखे गए हैं जैसे कि sheep, goat, fowl, etc. were available. तो according to him, every big village would have even a saraf or money changer. सरफ और मनी चेंजर के बारे में हम फर्दर ट्रेडर्स वाले लाइन में पढ़ेंगे. In addition, every locality had markets in the nearby towns where people from surrounding areas would come to buy and sell things. अगर आम भाषा में बोला जाए इट्स मोर लाइक रेगुलर मार्केट जैसे कि हाट्स और पार्ट्स वगैरह होते थे जो विलेजेस में देखे जाते हैं जो जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स होते हैं. वाई विलेजेस अगर हम अपने लोकल लाइफ में अभी देखें तो इट्स मोर लाइक बुध बाजार शनि बाजार ये जो लोकल जो ट्रेड ये जो चीज है ये होता है वहां पे बेसिकली. नाउ इफ वी टॉक अबाउट मुगल प्रोविंसेस अगर हम मुगल प्रोविंसेस की बात करें कि एज अ रीजन दे हैड बिगर कमर्शियल सेंटर्स एंड दोज बिग टाउन्स आल्सो सर्व्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ द सूबा जैसे पटना अहमदाबाद सूरत ढाका आगरा दिल्ली लाहौर मुल्तान अजमेर बुरहानपुर मासुलीपट्टनम बीजापुर हैदराबाद कैलिकट कोचिन एक्सेट्रा. So these जो centers है not working as an inland trade but it also serving for the inter-regional trade as well as foreign trade. Each had a number of markets. अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे ले जैसे यहाँ पे अहमदाबाद है alone had as many as 19 mandis in and around it. If income accruing to a town from commercial tax levied in its market is any index of the size of the market. Ahmedabad is the second half of the we may note that the income of Ahmedabad in the second half of the 17th century from commercial taxes was estimated around 42 lakh 86,000 dams per annum.
सिमिलरली सिटीज लाइक दिल्ली, आगरा, ढाका जो लाहौर थे, ये सेपरेट चीजों के लिए मतलब अलग अलग कमोडिटीज के लिए अलग अलग मार्केट्स को प्रोवाइड कराते थे। जहाँ पे यहाँ पे जे लिंस्कॉटन जो अपने राइटिंग में गोवा के बारे में लिखते हैं, कहते हैं कि ड्यूरिंग द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी वहां पे स्ट्रीट में एवरी डे ऑक्शंस होते थे, और वहां पे एक पर्टिकुलर स्ट्रीट हुआ करता था जिसमें सारा शॉप्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे ऑल काइंड ऑफ क्लोथिंग आइटम आपको मिलेगा, लाइक सिल्क, वेलवेट, सैटिन, वर्क ऑफ पोर्सिलियन फ्रॉम चाइना, लिनन, all sorts of cloths. The cities had a large number of merchants, broker, and saraf, and there were a large number of sarais, rest houses basically, जहाँ पे उनके लिए convenience हो for both travelers and the merchant, वहां से वो खरीद सके, आए रह सके. So the products from nearby towns, जैसे suburbs and the villages found their way to these centers. Like Patna, for example, had silk from Bekanpur. अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें आती थी। अगर यहाँ पे पटना का एग्जाम्पल लिया हुआ है, जैसे कॉटन क्लॉथ्स नंदनपुर से आ रहे हैं, सलीमपुर से आ रहे हैं, वैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ओपियम, शुगर, अलग अलग चीजें अलग अलग जगहों से आती थी। There were some towns that specialized in trading of specific commodities. For example, Buharanpur, it's for cotton mandi. Ahmedabad is for cotton textiles. Cambay, it's for gems market. Surat, Sarkhaj is for indigo. Everybody knows about indigo. आगरा फॉर बयाना, इंडिगो एक्सेट्रा, ये अलग अलग जगह से अलग अलग चीजों के बारे में बताते हैं। नाउ now let's talk about inter-religion trade. Inter-religion trade क्या होता है? Trade between different regions of India, मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन के साथ ट्रेड होना। और जो इंटर रिलीजन ट्रेड मुगल के टाइम पे था, वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुका था। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी वाज क्वाइट गुड एंड एक्सपेंसिव एज वेल। गुड प्रोड्यूस्ड इन वन प्लेस एंड कैरिड टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब एक जगह पे बनता था और उसको ले जाने के लिए काफी लंबी लंबी डिस्टेंस भी तय करनी पड़ती थी। समटाइम्स इट्स 100 miles, समटाइम्स इट 1000 miles। और उसमें जो मेन कमोडिटीज आती थी, दैट वर फूड ग्रेन्स, वेरियस सॉर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल, लग्जरी आइटम, मेटल्स एंड वेपन्स आल्सो ऑक्युपाइड। तो अगर हम इंटर रिलीजन ट्रेड की बात करें, तो टॉकिंग अबाउट ईस्ट, दैट इज बंगाल, it has developed trade relation with all parts of India. The important trading centers जो थे उनके, हुगली, ढाका, मुर्शिदाबाद, मालदा, ढाका is currently in Bangladesh, Murshidabad, Malda, Sadgaon, Tanda, Hijli, Sripur, Sonargaon, and Hooghly is an important prominent center. Some products like food grain were supplied by Bengal in most of the parts. Rice and sugar from Patna also brought to the market of Bengal. Textiles from the Bihar, Banaras, Jaunpur also bought in the Bengal. अब Bengal textile was available in Patna as well as Ahmedabad. मतलब बंगाल का रिलेशन बता रहे हैं towards the other state. It was quite good. हर चीज अवेलेबल थी, हर चीज इधर से उधर पहुंच भी रही थी। अगर हम गुजरात सिल्क मैन्युफैक्चर इन गुजरात और बिहार की बात करते हैं, तो ये जो दो सिटी, मतलब ये जो दो सिटीज, इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द बंगाल, बिकॉज बंगाल प्रोवाइड देम एज अ रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल देते हैं। अब दूसरी चीज जैसे सैफरन इज फ्रॉम कश्मीर, ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। इट जस्ट माई अजम्पशन कि सैफरन वहां से बंगाल में क्यों आता था, कि बंगाल में मुगल्स तो ऑब्वियसली थे, तो एंड मुगलाई खाने में सैफरन is one of the important spices, so maybe this was the reason कि saffron कश्मीर से बंगाल आता था। Very good, very बिहार, good. Bengal also had a trade links with Agra, Benares and various other town in the north। ना सिर्फ अहमदाबाद और गुजरात के साथ उसका कनेक्शन अच्छा था बिहार के साथ, बट हैविंग अ गुड रिलेशन विथ नॉर्थ एज वेल। नॉट ओनली नॉर्थ, साउथ का भी रिलेशन काफी अच्छा था इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग थिंग्स एंड एवरीथिंग। अगर हम वेस्ट की बात करते हैं, दैट इज अहमदाबाद एंड सूरत, दे आर द बिगेस्ट कमर्शियल सेंटर्स, बिकॉज वहां पे सिल्क मैन्युफैक्चर होता था, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड कि बंगाल से रॉ मटेरियल आता था, और यहाँ पे ब्लीच और डाई का भी काम था, और ये sent it to North Market. अब गुजरात received all its supply of pepper and spices from the Malabar coast. Textiles were taken from Gujarat to Multan and Lahore
Gujarat received a LSC from Bengal as well. This Sarkaj Indigo, famous for its quality, was taken from Gujarat to all parts of India. Larger scale trade carried on between the towns of Gujarat, Konkan and Malabar. अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं, दैट वाज आगरा, क्योंकि आगरा मेन सेंटर हुआ करता था उन लोगों का। तो ये लोग रिसीव्ड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सिल्क, मतलब जहाँ पे हर जगह पे जो जो चीजें मिलती थी, सिल्क, कारपेट, टेक्सटाइल, सैफरन, वुड प्रोडक्ट्स, फ्रूट एंड वुलन शॉल एटसेट्रा, बिल्कुल हर जगह से आगरा में फॉर श्योर वहां पे आती ही आती थी। अगर हम साउथ की बात करें, along with the coast, indigo from Bengal sold in Masulipatanam, paper spices of Malabar coast were taken to Bijapur, the Gujarat, tobacco from the Masulipatanam also taken to Bengal. Now coming to the next aspect, that was export and import. So during this time export was in wide range, काफी हद तक exports बढ़ने लग गए थे due to the coming of Europeans in India. बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होना शुरू कर दी हो गई थी। अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट थोड़ा कम था बट था। सो एक्सपोर्ट्स में क्या होता था, टेक्सटाइल, सॉल्पेट्रे, इंडिगो जो थे वो मेजर शेयर करते थे, और कुछ अदर गुड्स भी यहाँ पे होते थे। नाउ टेक्सटाइल टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंडिया, उनको एक न्यू हाइट्स मिल गई थी, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होगा। You are talking about the foreign trade, I think so. यस सर, इट्स नाउ फॉरेन ट्रेड, क्योंकि जब बात एक्सपोर्ट की आ जाती है तो ये अब फॉरेन ट्रेड की तरफ आगे की ओर बढ़ने लग जाता है। यस, अब तो निर्यात और आयात की बात हो रही है। गिव मी 10 सेकेंड्स। अब यस सर। निर्यात और आयात की बात हो रही है, और ये फॉरेन ट्रेड, अभी इंटरनल ट्रेड यानी कि क्षेत्रीय व्यापार की बात हो रही थी, जिसमें कि मंदिरा ने आगरा, इलाहाबाद, बंगाल, मछलीपट्टनम, इन सब को यूज किया। जैसे इसने बोला कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल, अहमदाबाद, सूरत, पश्चिम में अहमदाबाद, सूरत। और तो आप लोग इसको चार्ट के रूप में भी दिखा सकते हैं कि एक बीच में बना लिया क्षेत्रीय व्यापार, और ऊपर से बिहार में पटना इम्पोर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद पश्चिम में अहमदाबाद, सूरत इम्पोर्टेंट था, गुजरात को और आगरा, उत्तर नॉर्थ में आगरा था। तो इस तरह से करके आप लोग एक चार्ट के फॉर्म में भी इस पूरे ट्रेड को दिखा सकते हैं। ये बेसिकली अभी जो मंदिरा बताने की कोशिश कर रही है वो ये है कि इंटरनल ट्रेड और तीन तरह के जनरली ट्रेड के बारे में बात कर रही है। अभी इंटरनल ट्रेड में तीन टाइप के ट्रेड की बात कर रही थी, और ये तीनों इंटरमिंगल्ड है। और अभी जो बात हो रही है वो है आपको फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे। और फॉरेन ट्रेड में बस एक बॉटम लाइन था कि हम लग्जरियस गुड्स को बाहर से इंडिया में मंगाते थे। क्यों मंगाते थे इसका मैं आपको इसका डिस्कस करूंगा। यस मंदिरा, वेरी गुड, गो अहेड। ओके सर। नाउ टॉकिंग अबाउट टेक्सटाइल, मैंने बोला कि जब उसको एक अच्छा हाइट मिल गया, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्शन अच्छी होगी एंड इट लेड्स टू गुड सप्लाई एज वेल। तो बिफोर कमिंग ऑफ द यूरोपियंस, द मेन परचेजर ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल वर द मुगल, Khorassians, Iraqis and Armenians who carried them to Central Asia, Persia and Turkey. These goods purchased from all parts of India were taken by land route via Lahore. It is difficult to have an idea about the total volume of this trade. The Dutch and the English count now, अब दूसरे कौन से लोग थे जो डच और इंग्लिश थे, वो भी कॉन्सेंट्रेट करने लग गए इंडियन टेक्सटाइल में 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स में। और जो मेन वैरायटीज होती थी कॉटन फैब्रिक के, वो थे बफ्ताज, सामिनाज, कैलिको, और भी आपको नाम दिख रहे होंगे, एम्बर टी और मसलिन एंड अदर कॉटन क्लॉथ्स। Later on, various varieties of cotton textile from eastern coasts were also procured. चिन्स और जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स थे वो मोस्ट फेवरेट आइटम हो गए थे एक्सपोर्ट के लिए। कारपेट्स फ्रॉम गुजरात, जौनपुर एंड बंगाल ऑल्सो बॉट। दूसरा था सॉल्ट पेट्रे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है फॉर मेकिंग गन पाउडर।
और ये सबसे ज्यादा डिमांडेड यूरोप में, इसका सबसे ज्यादा जो डिमांड था वो यूरोप के लिए था। एंड देयर वाज नो रेफरेंस टू दिस एक्सपोर्ट इन द 16th सेंचुरी, दैट की 17th सेंचुरी जो डच ने जब इसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया फॉर कोरोमंडल, soon the English was also followed. During the first half of the 17th century, the Dutch and the English were exporting moderate quantities from the Coromandel, Gujarat, and Agra. In the second half of the 17th century, its trade from Bihar via Orissa and Bengal ports started. Soon, Bihar became the most important supplier. After 1658, the English were procuring more than 25,000 mounds of saltpetre per year from the Bengal ports. तो बंगाल पोर्ट्स काफी ह्यूज वहां पे पोर्ट था, तो वहां पे से भी मतलब सारा उनका एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। जो क्वांटिटी थी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी 1680 के बाद, और डच इसको सबसे ज्यादा डिमांड करने लग गए, ऑलमोस्ट 4 times। द इंग्लिश डिमांड फॉर दिस कमोडिटी का फिर उनका कंटिन्यू चला अप टू 18th सेंचुरी तक। दूसरा चीज है इंडिगो। सो इंडिगो इज बेसिकली नील जो डाई के लिए यूज होता था। ये मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया, पंजाब, सिंध और गुजरात में इसका काम था। द इंडिगो इज फ्रॉम द सारखेज, गुजरात, एंड बयाना नियर आगरा was much in demanded for export. Period to its supply to Europe, large quantities of this commodity were exported to the Persian Gulf from Gujarat and to Aleppo markets from Lahore. The Portuguese started its export around the last quarter of 16th century. Europe's demand was very large for dyeing woolen cloths. The Dutch and English started exporting it in the 17th century. Besides, merchants from Persia purchased it for Asiatic markets and Eastern Europe. The Armenians were also buying substantial quantities. In the 17th century, the Dutch, English, Persians, Mughals, and Armenians competed to procure the commodity. Around the middle of the 17th century, the Dutch and English were procuring around 25,000 or 30,000 mounds per annum. The demand continued to increase during the following years. So this is not new about Indigo. Everybody knows कि इसका डिमांड कितना ज्यादा था, और इसके डिमांड के चक्कर में फर्दर आने वाले पीरियड में हमें कितना प्रॉब्लम हो गया था हमारे एग्रीरियन लैंड में, और कल्चर वहां पे एग्रीरियन में बहुत ज्यादा हार्म कर गया था Yes, commercialization of agriculture. And give me 10 seconds, Miss Mandira Paul. So, a book written by Alexander Dow, Alexander D-O-W, Alexander Dow, A History of Hindustan. Okay. In his book, he wrote that the net profit of British East India Company in the year 1640s is only 20%. It increased 1665 during 1665 40%. 1685 to 1689 it's up to the 50%. So 20, 40 and 50. This is the net profit of British East India Company. So, and the book name is History of Hindustan, 1773, Alexander Dow. I'm waiting to teach you in the modern India all these things, but this is a connecting history, because here we saw the British East India Company, Dutch East India Company, not now, but some years after British East India Company, they came, and how they like sucked India. This was the C.A. Bailey used this word first time, and a very interesting example which I always referred when I'm teaching about the Murshidabad, but it's not like 1650. Murshidabad एक जगह है, था नहीं है, और ये पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का, मिस मंदिरा पॉल, कितना परसेंट? 5% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता था इन 1750. Okay, in 1750, 5% of world GDP contributed by this only a city, small city in Bengal. And if you go and study the book by written by Mr. Jeremy C. Brooke, Song of Surt, Song of Surt.
EPW इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में ये आर्टिकल आया था, सॉन्ग absurd, and you'll find so many things about the Murshidabad. And another very interesting book in 2015, Andrew Brooks की book है Clothing Poverty, The Hidden World of Fast Fashion and the Second Hand Clothes, मुर्शिदाबाद के बारे में. So in 1750, तो समझिए 60-50 में मुर्शिदाबाद का कितना रोल होगा इंडियन इकोनॉमी में. So get to know about all these things. Thank you very much, Mandira. It's a vibrant presentation. Go ahead with slow pace. Yes, sir, definitely. Now, अब हम आते हैं other commodities, like large number of other commodities were exported from India. Its opium was bought by the French, Dutch, English companies. The main source of supplier जो main supplier थे, that was Bihar and Malwa. The Bengal sugar was also taken in bulk by Dutch and English companies. Ginger was exported to Europe by the Dutch. Turmeric, ginger, and soft, where soft iska English, there is some other English, and this is also aniseed, were exported by the Armenians. Large scale trading operations were connected between the ports of Gujarat and Indonesian archipelago, from where the cotton textile were taken in the bulk to Indonesia, and spices were bought in return. एंड ब्राइटली कलर्ड कॉटन क्लॉथ, चेन्स जो मैंने पहले ही बोला, जो प्रिंटेड क्लॉथ्स होते थे फ्रॉम इंडिया, वर इन ग्रेट डिमांड. A large part of this trade was later on taken by Coromandel, from where textile were exported to the Indonesian island and spices were imported from there. ऐसा नहीं था कि import में हमारे पास कुछ नहीं आया, हमारे पास भी import में काफी सारी चीजें आई हैं. इवन जो हम डेली बेसिस पे अगर फूड वगैरह जो भी हम खाते हैं, लाइक चिलीज, पोटैटो, इट्स नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, ये बाहर से आई हुई है. नाउ टॉकिंग अबाउट इम्पोर्ट्स, कि हमारे पास क्या क्या चीजें आती थी. एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, द इम्पोर्ट्स वर लिमिटेड टू ओनली अ फ्यू सिलेक्ट कमोडिटीज. सिल्वर was the main item of import, as it was bought to finance the purchase of European companies and other merchants from different parts of the Europe and Asia. Copper too was imported in some quantity. Lead and mercury were other important commodities brought to India. Now, silk and porcelain from China were imported into India by the English. Good quality wine, carpets, and perfume were bought from Persia. Some items like cut glass, watches, silver, utensils, woolen cloths, and small weapons from Europe were in demand by aristocracy in India. Now, horse from Central Asia were imported in a large number for military uses. हॉर्स भी हमारे पास इंपोर्ट से ही आते थे, हमारे पास हॉर्सेस नहीं थे पहले से. द स्टेट वाज द मेन परचेजर. बिसाइड, इंडिया हैड अ ट्रेड रिलेशन विद इट्स इमीडिएट नेबर इन द हिल किंगडम. Musk was brought from Nepal and Bhutan to India, where it was bought by the Europeans. Borax was also imported from Tibet and Nepal. Iron and food grains were supplied in the return to these hill regions. तो अगर मैं इसको कट शॉर्ट में बताना चाहूँ, तो देयर वाज अ गुड ट्रेड रिलेशन बिटवीन, मतलब अपने ही कंट्री के अंदर एक बहुत अच्छा ट्रेड रिलेशन था, बाहर में भी काफी अच्छा ग्रो कर रहा था, क्योंकि ट्रेड एक ऐसी चीज है जो इकोनॉमी, किसी भी किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने का बहुत अच्छा जरिया होता है, और ट्रेड ने बिल्कुल वही किया. हमारे वेल्थ में काफी पैसा जमा करने में बहुत हेल्प किया था. नाउ these are some major, now I'll be talking about the roots. Either I want to interrupt you. Yes, sir. Yeah, why this was commodities, जो commodities की बात आपने की, because that shows the richness of India. हमें Yes, sir. जरूरत नहीं थी, हमें बेसिक कमोडिटीज की जरूरत नहीं थी. दैट्स व्हाई we entered into the luxurious thing, as early I reiterated about all these things, that we need only like aristocracy के लिए, जो रूलिंग क्लास था उनके लिए वाइन चाहिए था, इत्र चाहिए था, सुगंध, यानी कि दैट मीन्स द परफ्यूम, फ्रेगनेंस एक्सेट्रा. बट द कॉमन गुड्स आज भी इंडिया में है, और इंडिया में पहले भी था.
that it is the main problem of distribution today, और उस समय तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। हाँ, सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल था। ट्रेड जानबूझ के इन्फ्यूज किया गया इंडिया में कि भाई आप लोग जब तक नए टेस्ट को नहीं डेवलप करोगे तब तक आपको कैसे हम लूट पाएंगे। दिस इज द मेजर आइडिया ऑफ द। अगर हम इसका यस, दूसरा एस्पेक्ट देखें, इट्स करेक्टली इट सीम्स लाइक दैट कि जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे तो हम नहीं तुमको लूटने का तुम्हें चांस यस, नहीं मिलता, चांस बिकॉज नहीं। इट्स अ न्यू टर्म कि हम भी इस तरीके से ट्रेड, हाँ हम पीछे भी ट्रेड करते थे बट क्योंकि ऑलरेडी लूटने वाले सिनेरियो में थे तो इट्स अ गुड सोर्स फॉर और लूटो और लूटो। और यहाँ पे ट्रेडर्स जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स। ये जो ट्रेडर्स हैं वो जाके रूलर्स बने, ये जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसमें एक चीज बता दूं, आप लोग कभी मिडिवल को पढ़े, नूरजहां जुंटास को पढ़ें आप लोग। नूरजहां जुंटा मतलब नूरजहां का ग्रुप था, और उनके पास हेवी बड़े बड़े शिप हुआ करते थे ट्रेड करने के लिए। तो आई दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वो ग्रुप नूरजहां जुंटा, और उसमें उसका भाई, उसका फादर और शाहजहां जिसको खुर्रम बोलते थे पहले, वो इंक्लूड था। लेकिन बाद में खुर्रम हट गया और दूसरा भाई शहरयार था उस नूरजहां जुंटा में। और ऑलमोस्ट नूरजहां जुंटा वाज वेरी स्ट्रांग ड्यूरिंग द जहांगीर टाइम पीरियड, एंड दे कंट्रोल्ड ओवर द फॉरेन ट्रेड। हाँ, एक बहुत अलग स्टोरी है इसकी। बस मैंने आप लोगों को पिन दे दिया, कभी ध्यान है तो इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यस, गो अहेड। ओके, सो दीज आर द, अब मैं बात करूंगी रूट्स के बारे में। तो ये मेजर लैंड रूट्स है। इफ यू गाइस कुड सी तो प्लीज टेक अ लुक ऑफ इट। सो इनलैंड ट्रेड रूट्स में क्या था, आगरा टू दिल्ली। अब हर एक एक जगह का मतलब हर रूट का अलग अलग नाम भी दे रखा है, जैसे आगरा टू दिल्ली का काबुल रूट। अब नाउ आगरा टू दिल्ली जाने के बीच में जो जो चीजें आती है, जैसे आगरा, फरीदाबाद, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनल, अंबाला, लुधियाना, फतेहपुर, लाहौर, मतलब इस तरीके से ये जा रहा है। जैसे फर्दर हमें दिखने को मिलेगा आगरा टू बुरहानपुर, सूरत रूट कहते थे उसे, सूरत टू अहमदाबाद, आगरा, इस तरीके से है। जस्ट कंप्लीट आगरा टू पटना टू बंगाल रूट। अगर हम इस मैप के साथ देखना चाहेंगे तो हम इसको ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। यस, आप लोग मैप एग्जामिनेशन में दे दीजिए इंडिया का मैप, और एक वेग मैप, और वहां से आपको तीन चार रूट्स के बारे में आप आगरा पता होगा, दिल्ली पता होगा, लाहौर पता होगा, ठीक है, मुंगेर पता होगा, राजमहल पता होगा। तो ऐसे जगह को आप वहां पे पिन पॉइंट कर दिस इज, और ये पूरा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना, इफ यू ड्रॉ अ मैप। ओके, गो अहेड। Okay. So next is the foreign trade routes, that is overland routes and different means, जहाँ पे अब बाहर अगर एकदम भेजेंगे तो उसके लिए हमें different means of transport भी चाहिए होगा. So the means of transport for that time is the land and the river. तो अब overland route, the most frequented overland route during the medieval period was one of the connected with the Great Silk Route. The Great Silk Route beginning from the Beijing Pass through Central Asia via Kashigar, Samarkand, Balkh, and Kabul. Indian hinterlands were connected with this great route at Lahore. It passed through Multan, Kandar, and then entered Persia via Zed and Isfahan, Baghdad, and after crossing the Euphrates, it reached Aleppo. From there, commodities were taken to Europe and abroad. शिप्स, मतलब अब इसका थोड़ा प्रोसीजर लॉन्ग है क्योंकि ये ओवरलैंड रूट्स है और हर जगह पे रास्ता रास्ता आपको नहीं मिलेगा कि आप पहुंचाते रहोगे। तो इस तरीके से ये काम करता था। नाउ अगर हम लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा दिखने वाली चीज यहाँ पे होती थी, दैट वाज ऑक्सन। ये तो प्लेन लैंड्स के लिए है। अगर हम वेस्ट की बात करें तो आपको कैमल्स दिखने को मिलेंगे। अगर आप नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर हिली साइड्स जाते हो तो आपको दिखेगा वहां पे म्यूल्स एंड पोनीज, हिल पोनीज। सो ऑक्सन प्लेड अ मेजर रोल, दे वर यूज्ड एज अ पैक एनिमल फॉर कैरिंग लोड ऑन देयर बैक। और यहाँ पे देखा जाता था कि मर्चेंट ट्रैवलिंग विद 10,000 to 20,000 पैक एनिमल इन वन कैरावन कॉल्ड टंडा। Apart from the Banjaras, other merchants also used them for transporting goods. Oxen drawn carts were also used to transport goods
An ox could carry 4 mounts and a cart 40 mounts. The oxen which drew carts could travel 20 or 30 days without break, covering on an average 20 to 25 miles per day. Camels were commonly used in the western part of the country for carrying goods for the climatic condition or weather के जो भी चीजें हैं उसके लिए camels were favorable. They carried goods by land to Persia and Central Asia on high mountain region. Mules and hill ponies were used to carry heavy loads. Here human labor was also employed. उनके साथ human labor भी employed होते थे. Now talking about river transport, large number of rivers provided a network of river routes. The most frequent use of boat was in Bengal and Sindh. There was a regular traffic of goods between Agra and Bengal through boats. The boats carrying goods from Agra via Yamuna joined Ganga at Allahabad and went to Bengal. Contemporary sources refer to the playing of hundreds of boats between Agra and Bengal. Manrique noticed around 2,000 boats in anchor at राजमहल. अगर आज भी अगर आप बंगाल में जाते हो और अगर वहां पे कुछ भी पोर्ट्स देखते हो तो आपको बहुत सारे शिप्स वगैरह दिखेंगे जहाँ पे टिल ट्रांसपोर्ट वाज हैपनिंग इन दैट सेम वे. और नाउ 1 मिनट, ये अभी क्या बात हो रही है? ये हो रही है सबसे पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात की बात हुई, फिर उसके बाद ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बेसिकली जो ये बात हो रही है, भी मंत्रियों ने बात की है कि ये इम्पोर्टेंट है. आप लोग को लग रहा होगा कि गधे घोड़े की क्यों बात हो रही है, तो डेट वाज द इम्पोर्टेंट, ठीक है ना. तो ये बंजारों की बात हुई, तो ये किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन मोड था, इसकी बात हो रही है. यहाँ पे फॉरेन ट्रेड की बात जब आई है तो नेक्स्ट स्लाइड मंदिरा आपको दिखाइए और उसको फिक्स कीजिए. दिस इज द फॉरेन रूट्स. ओके, इंडिया का जो फॉरेन रूट था. एंड हियर आई वांट टू ऐड वन इंटरेस्टिंग थिंग. कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट मेडिसिन, एग्लिक मेडिसिन, उन्होंने 1700 और 1750 के आसपास में एक रफ एस्टिमेट किया था, तो द डेटा वाज नॉट एप्रोप्रिएट, एक रफ एस्टिमेट किया था. एंड यू नो द होल ग्लोबल इकोनॉमी अकाउंट, दैट मीन्स जितना ग्लोबल इकोनॉमी, वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी में चाइना कंट्रीब्यूट कर रहा था, इट्स अराउंड 30 to 32%. मैं बात कर रहा हूँ 17, जब औरंगजेब का डेथ हुआ था उस समय की बात कर रहा हूँ. China, that was 30 to 32%, and India 25%, and whole of Europe it is 30 to 32%. So mark my word, it's not only my word. I have an authentic source, Cambridge economist Eglick Medicine, and he wrote about these three major areas. Major areas बोला जाता था चाइना, और आप देख लीजिए चाइना और इंडिया almost 50 to 55 to 57% of world global economy को control करता था. And that was the Silk Route. That's why the foreigners wanted to stop that Silk Route, and every time China wanted to revive that Silk Route, but what happened is still we are in I think still confusion is going on, and we drifted from those Silk Route. आज हम उस Silk Route से बाहर हैं, कोशिश की जा रही है, काफी कोशिश हो रही है, लेकिन वो उस तरह से राइज नहीं हो पा रहा है. तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी, और हम चाइना इंडिया के प्रॉब्लम को समझने के लिए विल गो बैक, और 1707 और 15 की मैं बात कर रहा हूँ, और आप समझिए कि उसके पहले अगर कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है 1650, 1680, 1690 का, लेकिन 1700 को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई थी. और हियर इज द डेटा, चाइना इंडिया 57%, India only 25% वर्ल्ड्स ग्लोबल इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन था. थैंक यू वेरी मच मंदिरा, गो अहेड. ओके सर, तो अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, दैट वाज ऑफ ट्रेडर्स. तो अब ट्रेडर्स में भी काफी सारे डिवीजन थे, सब डिवीजन थे. सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट टू करेक्ट माय बंजारा स्पेलिंग, इट जस्ट बंगारा लिखा हुआ है. So that was merchant, then Banjaras in different region, then foreign merchants, moneylender and saraf, and lastly brokers. वन मोर टाइम. अब देखिए, ये हमने ट्रेड पढ़ लिया, अब हम ट्रेडर्स को पढ़ेंगे.
वो ट्रेड था और ये है ट्रेडर्स। तो ट्रेड एंड ट्रेडर्स, टॉपिक इज व्हाट, ट्रेड एंड ट्रेडर्स। तो ये हमारा टॉपिक है और ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल है आपके पेपर का। यस, गो अहेड। यस, बिकॉज विदाउट ट्रेडर्स यू कांट डू द ट्रेड, नो, क्योंकि हमने उधर इतनी बार बंजारास के बारे में जिक्र किया और मर्चेंट्स के बारे में जिक्र किया। जैसे मैंने वहां पे गोवा का एग्जांपल दिया था कि वहां पे सराइज बनाई गई थी पर्टिकुलरली फॉर दोज पीपल जो आके वहां पे रह सके फॉर द कन्वीनियंस। तो ट्रेडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट मैनर। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द ट्रेडर्स, जो सबसे पहले जो चीज आएगा कि मर्चेंट्स। अगर हम वर्ना सिस्टम की तरफ से सोच के देखें तो वैश्यास वेर सपोज टू डू दिस, बट हकीकत में ऐसा नहीं था। वहां पे वाइड रेंज ऑफ पीपल जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे, वो इस काम में इंडल्ज होते थे। ठीक है, अब आते हैं बंजारास पे। सो बंजारास आर द ट्रेडिंग ग्रुप्स हु कैरिड ऑन ट्रेड बिटवीन विलेज टू विलेज एंड टाउन्स इन रीजन, इवन सॉरी, मतलब ये एक जरिया बन चुका था कि मतलब ये विलेज और टाउन को जोड़ने के लिए भी इनका काफी एक अच्छा रोल कर रहा था। दे वर द इम्पोर्टेंट लिंक फॉर द रूरल एंड अर्बन ट्रेड। नाउ दे हैव सम लिमिटेड, और इनकी कुछ लिमिटेड कमोडिटीज होती थी, मतलब इनकी कुछ लिमिटेड कमोडिटीज ही होती थी जिसको लेकर वो ट्रेड करते थे, जैसे कि ग्रेन, पल्सेस, शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा। अब इनका एक फिक्स्ड क्लास भी हुआ करता, इनका एक फिक्स्ड क्लैन भी हुआ करता था, और इनके पास जो सबसे कॉमन एनिमल और जो सबसे ज्यादा एनिमल देखने वाली चीज है दैट वाज ऑक्सन। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने लैंड ट्रांसपोर्ट में बोला था कि बंजाराज एंड अदर मर्चेंट्स आल्सो यूज द ऑक्सन टू कैरी लोड्स। तो बंजाराज आर द वन हु यूज ऑक्सन सबसे ज्यादा। अगर हम जहांगीर की बुक में देखते हैं इन Tuzaki Jahangiri, Banjaras are the fixed class people who possess thousand of oxen, not less than thousand, but more than thousand. They bring grains from the villages to the town and also um, accompany armies. So ये लोग और ये जो बंजारा थे, ये लोग ग्रुप में एक साथ मूव करते थे और इसको टंडा कहा जाता था। और इस टंडा में हमेशा एक हेड या फिर एक नायक भी हुआ करते थे। सो बंजाराज, अगर हम इसमें बोले कि बंजाराज में कौन से कम्युनिटी के लोग थे, सो बंजाराज हैड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। Some scholar divide them into four group according to commodities like grain, pulses, sugar and salt and wood. But they operated in many parts of North Indian, मतलब इनके नाम अलग हो सकते थे अलग अलग जगहों पे, बट चीज यही थी। जैसे कि दे ऑपरेटेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया बाय काफी सिमिलर ट्रेडर्स थे, जैसा मैंने बताया, लाइक नाहमर्दीज, one group in Sindh, another in Bhotias between the Himalayas and the plains. अच्छा, अब दूसरी चीज जो आती है दैट वाज मर्चेंट इन डिफरेंट रीजन। सो वैश्यास का एक सबकास्ट बनाया जो लीडिंग मर्चेंट हुआ करते थे नॉर्थ इंडिया और डेक्कन पार्ट में, और जो बेसिकली हिंदू और जैन से बिलोंग करते थे, दैट वाज ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। और जो उनके काउंटर पार्ट्स इन खत्रीज इन पंजाब और कोमतीज इन गोलकोंडा, और यही थे। जो इनका सबकास्ट था दैट वाज बनिया, जो कि संस्कृत वर्ड्स अगर हम इसके डिराइव करें तो वो बनिक बनेगा। तो बनिक वो होते हैं जो मतलब ट्रेड का काम करते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं बनिक। सो डिफरेंट सरनेम, और उनके जो सरनेम्स है वो एक ओरिजिन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अग्रवाल्स फ्रॉम अग्रोहा, ऑसवाल्स फ्रॉम ओशी इन मारवाड़। और जो हायर नंबर्स ऑफ जो ट्रेडर्स थे तब के, तो वो बेसिक मोस्टली मारवाड़ीज थे। अगर हम कॉन्टेम्परेरी ट्रेवलर ट्रेवेनियर और लिंक्सटॉटन की बात करते हैं तो उन्होंने काफी प्रेज किया है इन लोगों के स्किल्स को, कि अनलाइक बंजारास, वो बनियास क्या करते थे, वो हर टाइप की ट्रेडिंग करते थे। क्योंकि बंजारास पे एक स्पेसिफिक बोल दिया कि वो पल्सेस, शुगर वगैरह ही करते थे, लेकिन ये हर एस्पेक्ट में काम करते थे। और ये बाद में जाके एज अ मनी लैंडर की तरह भी एक्ट करने लग गए, जो विलेजेस में जो जो पुअर पीजेंट्स होते थे उनको पैसे लोन की तरह देते थे ताकि वो अपना आगे रेवेन्यू कंप्लीट कर सके, दे सके। और इस कम्युनिटी को इसकी सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता था। इवन इन लोगों के पास शिप्स भी होते थे, और शिप्स बहुत महंगे मिलते हैं, एक बोट की कीमत बहुत होती है, रादर उनके पास शिप्स होते थे। As in Punjab, Khatris were the major trading community.
और गुरु नानक भी खत्री से ही बिलॉन्ग करते थे, तो वहाँ पे मैंने जब पढ़ा तो देखा कि बोलते हैं कि गुरु नानक के वहाँ से एक कम्युनिटी और स्टार्ट हो गई, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने अपने आप को मुस्लिम में भी चेंज कर लिया था। तो मतलब ये जो ट्रेडर्स थे, ये सिर्फ एक कम्युनिटी के नहीं रह गए थे, यहाँ पे हिंदू भी काम कर रहे थे, जैन्स भी काम कर रहे थे, मुस्लिम भी काम कर रहे थे, सिख्स भी काम कर रहे थे। अब द मुल्तानीज वर द इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी in Delhi and parts of Punjab. The Bohras were merchants of Gujarat and they were mostly Muslims. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग थे, और बोहराज के जो मर्चेंट्स थे वो मोस्टली मुस्लिम्स ही थे। साउथ इंडिया के अगर हम मर्चेंट्स की बात करते हैं, इट्स ऑल आर डिफरेंट रीजन में जिनका काम है, अलग अलग मर्चेंट अलग अलग जगहों पे। सो साउथ इंडिया में भी मर्चेंट ग्रुप्स होते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। और इन उसमें मेन चेट्टीज, ठीक यस है। सर। हाँ, गिव मी 10 सेकेंड्स। उसमें मेन चेट्टीज थे, और उसके बाद जिसको कि श्रेष्ठी भी बोला जाता है संस्कृत में, और ये डिफरेंट तरह के ट्रेड में इन्वॉल्व रहते थे। कोरोमंडल कोस्ट से लेके मालाबार और श्रीलंका तक ये इन्वॉल्व रहते थे, और इवन मद्रास में भी गुजराती ट्रेडर्स थे, वो भी इन्वॉल्व थे। अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेड की, तो फॉरेन ट्रेड में अर्मेनियन उस समय काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावे खुरासानी, अरब, इराकी भी बाहर से इंडिया में आते थे। एक यहाँ पे नाम छोड़ दिया है, अफ्रीकन्स, जिनको कि मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। ठीक है, गो अहेड। महाजन एंड सराफ्स, डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, सो अगर हम डिफरेंट ग्रुप्स की, सर ने सारा बता दिया, फॉरेन मर्चेंट्स एंड एवरीथिंग। तो दैट वाज मनी लेंडर एंड सराफ्स। तो अगर नॉर्थ इंडियन मर्चेंट प्ले अ डुअल रोल, वो डुअल रोल प्ले करते थे, एज अ मर्चेंट, एज अ मनी लेंडर, जो बाद में मैंने जैसे बोला कि वो पीजेंट्स को आगे पैसे देते थे ताकि वो अपना रेवेन्यू दे सके, इस तरीके से। एक दूसरी कैटेगरी थी, दैट वाज सरफ्स। दे परफॉर्म थ्री फंक्शन: मनी चेंजर, वो काम करते थे एज बैंकर, ट्रेडर ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड ज्वेलरी। सो मनी चेंजर जो थे वो एक्सपर्ट थे इन जजिंग द मेटेलिक प्योरिटी ऑफ कॉइन as well as the weight. So Tavernier said, also not a money changer called Sharaf who act as a banker. So the Saraf was also part of Mughal mint establishment. They were also verified and the purity of coins after मिंटिंग। तो इनका काम कुछ इस तरीके का था। अब लास्ट में आते हैं हम ब्रोकर्स पे। सो द नीड ऑफ ब्रोकर्स इन इंडिया वाज मेनली ड्यू टू सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द सेम commodities were scattered all over the country. Individual output of this center was small. Large number of buyer competing for the same commodities in the same market. Exactly, हम brokers क्यों ढूंढते हैं? ताकि कोई middleman हो और जिसके जिसके कंधे से हमारा नैया पार हो जाए, अगर आम भाषा में बोले तो ये होता है। तो इसमें काफी सारा रिकॉर्ड हमें इसके ब्रोकर्स के देखने को मिलते हैं। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिकॉर्ड्स रेफर टू ब्रोकर्स बीइंग एम्प्लॉयड एट द डिफरेंट फैक्ट्रीज. Prior late 17th century says that without broker neither the native nor the foreigner did any business. और भी ऑविंगटन भी कमेंट करते हैं, फॉर बाइंग एंड सेलिंग कंपनीज गुड ब्रोकर्स आर अपॉइंटेड हु आर ऑफ बनिया कास्ट एंड स्किल्ड इन द रेट्स एंड वैल्यू ऑफ द कमोडिटीज। दूसरा जो मैनरिक्यू थे वो बताते हैं, देयर वर अराउंड 600 brokers and the middlemen at Patna. Their number might have been much larger in bigger commercial centers like Surat, Ahmedabad, Agra, and other coastal towns. Indian brokers were to be found in foreign ports also. They were operating at Gomboron, Bandar Abbas, Basar, Bandar League, etc. Sometimes the whole family भी वही एक ही काम में रह गए इन पार्टनरशिप में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, भीमजी पार्क, a prominent broker had a joint business with his brother. He had 8 shares. Kalyan Das 5, Kesho and Vittal Das have 4 each. So A. Jain Kasir has divided brokers. अब उन्होंने brokers को कुछ 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए थे, जैसे those employed by the companies or merchants, those who worked for the several clients, those who worked on the ad hoc basis as broker contractors, and state appointed broker at commercial centers to register sale and purchase of articles. The brokers operating
independently can divided in various group on the basis of their areas of partnership. Some dealt only the specific commodity like silk, saltpetre, cotton, textile, indigo, etc. Other dealt in more than one commodity. Some worked as a sub-broker or under-broker for a well-established broker. लास्ट में मतलब ब्रोकर का जो फीस और जो कमीशन होता था वो कभी स्ट्रिक्टली फिक्स नहीं होता था. इट डिपेंड्स ऑन द कमोडिटी एंड एफर्ट्स ऑफ द ब्रोकर टू स्ट्राइक द डील और द लेबर इन्वॉल्व इन द commodity. In ordinary dealings, the brokerage was 2% of the value of transaction. 1% was charged from each of the parties, buyers and sellers. Brokers who were in regular employment were paid fixed salaries and some commission in some deals. सो इतना तो है नहीं कि कितना था, बट यस उनका उनका कोई फिक्स फीस नहीं होता था. वो जितना जिससे बोल सके या ले सके वो उनका काम होता था. और beside helping their clients in procuring and selling good, the brokers played a key role in the organization of production. Most of the money advanced dadni to the artisan were made through the brokers. अगर हम लास्ट में अगर बोले कि इसको कंसाइज कैसे करना है, तो ट्रेड एंड ट्रेडर्स इट्स अ वाइटल रोल किया इन्होंने. इकोनॉमी को भी बढ़ाया, काफी ट्रेड बढ़ा तो हमारे जो गुड्स थे हमारे पास जो थे वो भी गई और कुछ हमारे पास भी आई. ट्रेडर्स एक क्लैन बन गया, एक डिफरेंट पीपल का ग्रुप बन गया जो काफी लाइक उनके पास काफ़ी वेल्थ था, बहुत पैसा भी था. जहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि बोट्स बहुत महँगे मिलते हैं, उनके पास शिप्स था. मतलब ये काफ़ी वेल्दी थे और धीरे-धीरे फिर इन्होंने एक्सचेंज हो गया कि ये एकदम ऊपर चले गए, उसके बाद नीचे-नीचे आ गए. तो दैट्स इट फॉर माय प्रेजेंटेशन सर. Okay, थैंक यू. but here two, three things I want to add. Commercial practices. Okay, so ओके. there are three or four types of the commercial practices. एक था बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको कि हम हुंडी बोलते हैं. और सब लोगों को पता होगा कि हुंडी क्या था. हुंडी वॉज ए पेपर डॉक्यूमेंट promising payment of money after a period of time at a certain place, just like a banker's check. बिल ऑफ एक्सचेंज आज अगर मॉडर्न में कहें तो उस समय का जो कमर्शियल प्रैक्टिस थी वो कमर्शियल प्रैक्टिस इस पे डिपेंड करती थी. और एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज था और जिसको कि हम हुंडी बोलते थे. दूसरा जो था वो बैंकिंग. कहीं ना कहीं सराफ जो थे, जो अभी सराफ का वर्ड यूज किया मंदिरा ने, तो कहीं कहीं जो सराफ लोग थे वो लोग क्या करते थे, बैंकिंग का इनिशियल स्टेज उन्होंने शुरू किया था. जैसे हम अगर देखते हैं 1645 में आगरा में, 1630 में सूरत में, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो करीब 9.5% पर एनम था. और जैसे इस तरह से बैंकिंग सिस्टम का हम इनिशियल देख सकते हैं. सुजॉन रॉय के बारे में आपके बुक में दिया हुआ है. और उसके बाद एक और चीज जो इम्पोर्टेंट थी, जो प्रैक्टिस था, रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब कुछ लोग पैसे प्राइवेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया करते थे, खासकर जमींदार जो वगैरह होते थे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट. जैसे पटना में यहाँ पे एक दिया हुआ कि पटना में 16/20/21 में 9% पर एनम पे दिया जाता था. और while around 1680 it seems more than 15%. कासिम बाजार बंगाल में है, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका था 15%. मद्रास में था 8%. तो इस तरह का जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का की बात करते हैं, तो ये इसको हम अंडर द हेडिंग ऑफ क्या देख सकते हैं, कमर्शियल प्रैक्टिसेस. तो कमर्शियल प्रैक्टिसेस कैसी थी, बिल ऑफ एक्सचेंज था आपको, यानी कि हुंडी, बैंकिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड समवेयर वी सॉ द पार्टनरशिप. ओके. और इंश्योरेंस भी कहीं कहीं हम देखते हैं कि कुछ चीजों पे इंश्योरेंस भी, बीमा भी, एक्चुअली बीमा शुरू तो नहीं हुआ था, लेकिन कई जगह था जो कि सराफ थे वो क्या करते थे कि भाई हमें इतना पैसा दोगे तो आपका ये जो गुड है और आपका ट्रेडिंग कम्युनिटी हम सही पहुंचा देंगे, बस उसके पास क्या होता था, मुझे थोड़ा उसमें और ऐड आप कर दो पैसे तो हम आपको
आराम से पहुंचा देंगे। तो दीज आर द इनिशियल स्टेज ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इन मुगल पीरियड। सो अगर मुगल पीरियड में देखें तो हमें इंश्योरेंस कंपनी और जो आज मॉडर्न प्रैक्टिस हम जो करते हैं पार्टनरशिप का, वो उस समय भी पार्टनरशिप था। और वो पार्टनरशिप हम देखते हैं तो अकबर अकबर के समय दो एलिट्स थे, नवाब कुतुब खान और नवाब किलीच खान। इन लोगों ने एक बड़ा बड़ा शिप बना के और उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया। बनारसी दास ने भी अपना जो डायमंड का ट्रेड इसी तरह से करना शुरू किया। छोटा ठाकुर, सूरत में शाम जी, इन सब लोगों ने क्या किया कि अपना एक पार्टनरशिप में ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ बताना चाहता हूँ कि मुगल इंडिया में वो सारी चीजें थी जो कि मॉडर्न प्रैक्टिसेस को हमें शो करती हैं। दैट मीन्स द कमर्शियल एक्टिविटीज डिपेंड अपॉन द bill of exchange, partnership, insurance, and banking, rate of interest, etc., etc. So, a very modern, classified economic structure. If you talk about Mughal time period, so this gives British to exploit all those bases. And it's not only because we firm believer of the continuity and change. These all were established in the temple economy also. If you remember in the ancient time periods, a very important phase about the about what the टेम्पल इकोनॉमी का एक काफी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा हुआ है यहाँ पे। और वो एस्पेक्ट मुगल को मिला, मुगल के एस्पेक्ट से ब्रिटिश को मिला, और ब्रिटिश के एस्पेक्ट से आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो इट वाज अ कंटिन्यूटी एंड चेंज, किसी एक लोगों का किया धरा नहीं है ये सारा कुछ। ओके, सो द लास्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस, जहां पे मंदिरा ने थोड़ा सा कम ध्यान दिया, वो है कि इन लोगों का पोजीशन क्या था। दैट मीन्स मर्चेंट्स, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टेट। तो आप लोग आप लोगों को इस पे लिखना है, और थोड़ा सा लिखना है, और बस मैं 3-4 पॉइंट में फिनिश कर रहा हूँ अर्चना, फिर आई एम कमिंग टू यू। और ये आप जब भी मुगल को पढ़ेंगे थोड़ा बहुत आएगा। तो जैसे शहर में कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो कोतवाल होता था। फिर हम देखते हैं कि महाजन जो होता था, जो कि किसी खास तरीके के ट्रेड को कंट्रोल करता था। और गुजरात में हमें 53 महाजन के होने की जानकारी मिलती है, खासकर अहमदाबाद में। और इसलिए अहमदाबाद में आप देखिए तो सिर्फ वहाँ पे मैं गया हूँ अहमदाबाद, और जाता ही रहता हूँ। और वहाँ पे कुछ गेट्स हैं, और हर एक गेट में उनको माना जाता है कि रात में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि रात में लक्ष्मी शायद नहीं आती है, ऐसा है। या रात में लक्ष्मी आती है क्या? नहीं, जब गेट बंद होता है तो लक्ष्मी नहीं आती हैं। तो वो ऑलवेज वो गेट को अहमदाबाद के हम खुले रखते थे कि लक्ष्मी का प्रवेश अहमदाबाद में। उसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज 24/7 चलता था। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस सर। हाँ। सो और उसके बाद नगर सेठ, सबसे जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे, श्रेष्ठी साउथ में और नगर सेठ नॉर्थ में। ठीक है। और इसी तरह से शाहजहां के समय एक विरजी बोहरा, जो सूरत का गवर्नर भी था, और उसके बारे में हमें जानकारी लेने को मिलती है। और बिरजी बोहरा अपने जब डेथ हुआ था तो काफी पैसे वो छोड़ के गया था अपने लोगों के लिए। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडर्स हैं उनका सोसाइटी में इम्पैक्ट था। और इन सबसे अल्टीमेटली एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट, एज ए हिस्ट्री टीचर, हम क्या देख सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि ट्रेड वाज एट ऑप्टिमम लेवल। ट्रेड जो था वो एकदम ऑप्टिमम लेवल पे था, और जिसका फायदा ब्रिटिश ने उठाया, अंग्रेजों ने उठाया। और एक छोटा सा डेटा जो कि आपको पता चलेगा, मैं पढ़ते रहता हूँ, कहीं कहीं डेटा मिलता है तो आप लोगों के लिए इकट्ठा करता हूँ। अगर वो मिल गया मेरे सामने, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि
कि 40% 30% यस। तो जो वर्ल्ड शेयर इंडिया का जो मैन्युफैक्चर था, मैंने आपको बताया था 77 और 15 के आसपास 25% था। 1800 में 19.7% हो गया, 1860 में 8.6% हो गया, 1913 में 1.4% हो गया, and that was the height of British domination in India. They started with 25% of world contribution from India side, and they end with the 1.4% before the world war. और उसके बाद और कितना कम हो गया होगा आपको पता है, लेकिन उनका आप देखिए कि ब्रिटेन का मैन्युफैक्चरिंग में शेयर कितना परसेंट हो गया, 40 to 45% इन 1913। सो ये देखिए, जैसे बोलते हैं कि गंगा से हम निचोड़ के हमने जेम्स टेम्स नदी पे जाके डाल दिया है, तो वो यहाँ का है। और मैं जब आप लोगों को मॉडर्न पढ़ाऊंगा तो क्लाइव के बिल्डिंग्स के बारे में बताऊंगा कि उसने कितने बड़े बड़े कैसल्स, कितने बड़े बड़े महल वहां पे खड़े किए हैं, और लूट के पैसे से। जब क्लाइव गया था तो they are the sophisticated Turks, they are the sophisticated मोहम्मद बिन कासिम एम गजनी, उनमें और मोहम्मद बिन कासिम में कोई अंतर नहीं था। बस वो लोग घोड़े पे आए थे और लोग दिमाग पे चल के आए थे, जो इंडिया को कंट्रोल किया। सो दैट्स इट फॉर द टुडे प्रेजेंटेशन विथ अर्चना। और अर्चना को थोड़ा सा हेल्प मैंने इसलिए किया कि अर्चना इज वेरी प्री ऑक्युपाइड, वो उसका दो प्रेजेंटेशन है, फिर GSTS है। सो दिस इज लिटिल एफर्ट फ्रॉम माय साइड, मंदिरा, लिटिल एफर्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू अर्चना, फैबुलस प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच। अर्चना, योर क्वेश्चन। ये सब अर्चना मंदिरा सब में मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ। अर्चना बोलिए, क्वेश्चन आपका। यस सर। सर मेरा मंदिरा से ये क्वेश्चन था कि जैसे ये ट्रेड में यहाँ